Hello students, welcome back to my channel. Today's video is on how to write a 20 marks long answer. Make sure that you see the video from the beginning till the end so that you don't skip any important points. And let me tell you that if you are new to my channel, make sure that you subscribe my channel since I post a lot of videos related to ISC board. Now this video is especially for 11th and 12th and for those who are giving their board examinations in 2021, that how to write a 20 marks long answer. English being a subject which has a lot of strictness regarding the answers, I would tell you how to exactly write an answer. The boards want you to write an exceptional answer with these key points which I am going to tell you in this video. I am not going to give you any teacher's perspective on how to write an answer, but I am going to directly give you the board's perspective. I must say you're lucky that you're seeing this video and noting all the points will make you write good answers. So let us take an example of a story Fritz, one of the intriguing story of Ecos, and I must say that it has got a lot of supernatural material with horror, macabre, and this chapter is liked by most of the students. Now, if this chapter comes and a question regarding it is in your question paper, how to write the answers? First, I'll not write the question, I'll just give you the points which are compulsory to be written in all the answers of the questions. So, here I am with the first point, that is the introduction. I know that most of your teachers suggest you that you don't need to write author's introduction. But I must say that it has also marks for writing the intro of the author. Now, writing about the author means you have to write about his or her famous works, books, movies, novels, etc. You don't need to write the birth and the death date. You just need to write these key points, that is the author's introduction about his famous books. It should be of 4 to 5 lines, not more than that. Second point is, why is the title apt and intriguing? This question has to be answered by yourself. Like this story Fritz, the title is Fritz. You need to tell the examiner why this story is appropriate. The title is appropriate. I must say that Fritz, which is a doll on which the story revolves. यू कैन सी कि फ्रिट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है स्टोरी में. द डॉल, जयंतो की जो डॉल थी, ये एक मेन कैरेक्टर है जो ये डॉल के बारे में, इसलिए इसका जो टाइटल है आप कैसे लिखेंगे, आई विल टेल यू नाउ. Fritz is the name of the doll which the protagonist of the story जयंतो गॉट फॉर हिज अंकल फ्रॉम हिज अंकल. सो ये अंकल जो थे उनके स्विट्जरलैंड से ये डॉल लाए थे, एंड दिस डॉल had a freaking and intimidating story. So when Jayanto's uncle, he purchased this doll from one of the shops in Switzerland, the man who sold the doll told Jayanto's uncle to call the doll Fritz as it would not respond to any other name. So you can also give out a little bit of doll's characterization in this point. You can write the second point for about 3 to 4 lines. Now the third point is 4-line summary. What is the storyline? You need to give a little and short description about the story. What is going to be in the story? The storyline basically. Next is theme. ये बहुत important है. जो theme है, if you don't write the theme of the story, you're not getting marks. आई मस्ट से कि आपके मार्क्स 3 to 4 तो डिडक्ट हो ही जाएंगे इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द थीम. थीम जैसे कि ये फ्रिट्स की जो थीम थी, इट वॉज सुपर नेचुरल, मकैबर, हॉरर. सो यू नीड टू एग्जैजरेट अ लिटिल बिट अबाउट थीम. नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन कुछ देंगे, आप आंसर कुछ और लिखेंगे. नाउ मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट द क्वेश्चन, if it states that characterization about the doll, how was the doll intimidating, so you have only a few lines to answer about that, maybe only one page. पर ये तो 20 marks का है. You have to write a long answer, you have to stretch everything. but आपको जो question पूछा है, like if it has been asked about the characterization of the doll,
यू हैव टू एग्जैजरेट अबाउट दैट थिंग। उसके बारे में बताना है कि कैसी वो डॉल दिखती थी, उसके जो आउटफिट था वो कैसा था। लाइक इट वॉज अ 12-inch लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल. It had a smiling face, wore a Swiss cap, had a little yellow feather protruding, sticking out from it. It had belt, buttons, pockets, collars, socks, and buckles on the shoe. ये सब आपको लिखना है. एंड ये सारे ही हमारे कोड्स होते हैं. आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं होता है व्हाट आर कोड्स, क्या लिखना है कि कोड्स होते क्या है. एंड स्पेशली रेलिवेंट कोड्स यू माइट हैव फेस्ड दिस थिंग कि जो टीचर है वो लिख रहे हैं कि राइट रेलिवेंट कोड. इसका मतलब ये है कि जो रेलिवेंट मीन्स यू हैव टू राइट द कोड विच आर नेसेसरी टू बी रिटन. आप फालतू में कोई भी कोड अपने आप का पुट नहीं कर सकते हैं. आप अपने ही कोई भी वर्ड्स या फिर अपनी डिक्शनरी से कोई वर्ड पुट नहीं कर सकते. अगर वो बुक में है वो वर्ड, अगर वो कोड बुक में है तभी आप उसको लिख सकते हैं एंड उसको हाईलाइट कर सकते हैं. मे बी यू कैन राइट इट विद अनदर इंक पेन. सो ये कोड्स होते हैं जो कि बुक में ऑलरेडी होते हैं, स्टोरी में होते हैं. एंड कोड एक तरीके से जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना स्टोरी के, जिससे आपको पता चले हाँ यहाँ ये स्टोरी में हो रहा है. सो दीज आर द कोड्स. अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन पूछा गया है यू राइट अ लॉट अबाउट दैट. बट आप बोलोगे इसमें तो 1 पेज फिल होगा, फिर बाकी पेजेस ये तो 20 मार्क्स का आंसर. तो आपको क्या करना है, जो समरी है स्टोरी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको समरी भी लिखनी है. पर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको उसको एग्जैजरेट नहीं करना है, उसको ज़्यादा नहीं लिखना है. आपको सिर्फ जो आंसर पूछा गया उससे ज़्यादा लिखना है. तो इस तरीके से जो 20 मार्क्स का आंसर है वो आपको कवर हो जाता है. आप स्टार्ट करेंगे जयंतो एंड शंकर के बारे में, हाउ दे मेट, दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कौन सी उनकी जॉब्स थी. थोड़ा बहुत, बहुत सारा नहीं लिखना है. दे वेंट टू अ सर्किट हाउस, और उसमें इतना वो नहीं लिखना कि सोफ़ा चेयर ये सब नहीं पूछा गया है. सो यू डोंट नीड टू गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट. राइट ओनली व्हाट इज़ आस्क्ड. उसके बारे में ज़्यादा लिखो जो पूछा गया है. ऐसे नहीं कि कुछ भी, सारे ही पॉइंट्स आप ज़्यादा ज़्यादा लिख रहे हैं. ऐसे तो आपको 6-7 पेजेस में आ जाएगा आंसर अगर आप पूरी बुक वो कर दे. तो आपको बुक के बारे में नहीं पूछा गया है आपको, आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि आपको आंसर लिखना है जो क्वेश्चन गिवन है. ओके. ये कीवर्ड्स कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, डोंट मिस देम. यहाँ पर जैसे फ्रिट्स है, यहाँ पर मैंने कोड्स को हाईलाइट कर रखा है. यू पीपल कैन हाईलाइट द कोड्स इन योर बुक ताकि आप लर्न करो. और लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन कोड्स को. अगर आप इनको आंसर्स में नहीं लिखोगे यू विल नॉट गेट मार्क्स. कोड्स नहीं लिखोगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलते, बहुत कट भी होते हैं. ये सर्किट हाउस, एडिटोरियल डिवीजन ऑफ अ न्यूज़पेपर, अगर क्वेश्चन इससे पूछा गया तो इसके कोड्स आप पुट करोगे. एंड ये भी काफ़ी सारे कोड्स हैं. जो क्वेश्चन मेरा था कि कैरेक्टराइजेशन अबाउट द डॉल, हाउ इट वाज इंटिमिडेटिंग. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको लिखना है. यहाँ पर इसका कैरेक्टराइजेशन है. ये जो मेरे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, दीज आर द कोड्स. देखिए, बेल्ट्स, बटन्स, पॉकेट्स, कॉलर, सॉक, लिटिल बकल्स, इसके बारे में है सब कुछ. इट वॉज अ 12-inch लॉन्ग फिगर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल, ये सब लिखना है आपको. और एक और स्टोरी थी जिसमें जयंतो बताता है कि हिज डॉल died after two of the dogs had a tug of war